dear students, welcome back to online series of solving SSC board exam question bank, and this is the part 6. SSC board has given two types of question bank. In the first question bank there are 5 activity sheets, and in the second question bank there are 2 activity sheets. So we will consider this activity sheet as 6th activity sheet and going to solve question number 1, A1, A2 and B. It is just like the similar ones which we have solved in the previous videos. If you have not seen those videos, you can click on the description box and see first, second, third, fourth and fifth part of my do as directed English activity sheets, which is available on my channel Kids Study Fun and Food. Okay students, if you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Let's begin. English activity set 6th, section 1, language study, do as directed. First question is you have to solve any 4 out of 5, and the first one is identify the type of sentence. The sentence given to you is don't lose faith, and the answer of this is it is an imperative sentence. Okay, because it is basically a simple sentence and nothing such typical is that you cannot identify it. Second one is punctuate the given sentence. Are you still hungry? I asked faintly. Answer, inverted commas open, are you still hungry, question mark, inverted comma close, comma, I asked faintly. Okay, minor corrections are there and you are punctuating it with a question mark because you are asking, and question means you are inquiring something, so question mark is a necessity here. चलो आगे बढ़ के थर्ड सेंटेंस देखते हैं हम लोग. फाइंड आउट मिनिमम 4 लेटर वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड. आपको जो वर्ड दिया है वो है कन्वर्जेशन, और कन्वर्जेशन से आपको 4 लेटर्स की या 4 से ज़्यादा लेटर्स की स्पेलिंग बनानी है. मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, आप इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हो. एक्शन, रेस्ट, रेशन, वर्जन, कन्वर्ट, नेशन, कॉन्वेंट, नेस्ट. आप चाहे तो आपकी इच्छा के अनुसार और आपके टैलेंट के हिसाब से और दूसरी स्पेलिंग्स भी बना. बस आपको एक चीज़ जो अपने माइंड में हमेशा रिमेंबर करनी है हिडन वर्ड्स फाइंड करने के लिए, कि वो सारे अल्फ़ाबेट्स इस स्पेलिंग में होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ACTION एक्शन है, तो आप कन्वर्जेशन के अंदर A भी देख सकते हो, C भी देख सकते हो, TION भी देख सकते हो. इन द सिमिलर मैनर REST रेस्ट है, जो भी वर्ड हो वो उसमें आना चाहिए. फोर्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है कंप्लीट द वर्ड चेन फॉर वर्ब्स. आपको एक वर्ब दिया है चेंज, उसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट है E, उससे आपको कंटिन्यूसली वर्ड्स बनाना है. मीन्स एक वर्ड फिर उसका लास्ट वर्ड से नेक्स्ट वर्ड, फिर उसके लास्ट वर्ड से नेक्स्ट वर्ड, और इसी तरीके से एक आखिरी वर्ड. देखो चेंज का आखिरी वर्ड है E, इससे हम लोग बना रहे हैं इंजॉय. इंजॉय के बाद है वाई से यॉन, एन से नरेट और ई से ईट. ये एक एग्जाम्पल है, और इसके नीचे एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है एग्जामिन वाला. आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो एज पर योर चॉइस. अब फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द प्रॉपर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. देखिए ये एक यूनिक क्वेश्चन है जो अभी तक एक भी शीट में रिपीट नहीं हुआ है. आपको ABC ऑर्डर के हिसाब से इसको अरेंज करना है. तो ABC ऑर्डर के लिए सबसे पहले वॉवल्स देखना है. फर्स्ट वर्ड तो कॉमन ही होने वाला है, इसके बाद आप वॉवल्स देखिए. जैसे कि E है, E के बाद इधर कोई वॉवल वाला लेटर नहीं, इसलिए L वाला लिया है, फिर O वाला और U वाला. इसी तरीके से हमको आंसर लिखना है सिक्योरिटी, स्लीप, सॉल्यूशन एंड सडनली. बहुत ही ईजी होता है, बस इसको केयरफुली करना होता है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप लोग माइनर मिस्टेक्स की वजह से इतने ईजी क्वेश्चन के भी मार्क्स लूज कर जाते हो. हाँ चलिए मूव करते हैं सेकेंड पार्ट के लिए. A to do as directed any 2 for 4 marks. First one is rewrite in indirect narration. Now young man he said we are ready to listen to back. इसका indirect narration करना है. ओके इसका आंसर है he told the young man that they were ready to listen to back. आपको inverted commas वगैरह सब हटा के इसको indirect speech बनाना है. Very simple and very easy. Next, second one, make meaningful sentences of your own to show the difference in homophones. Blue, the sky turned blue during the evening time. Blue, the girl started to blow balloons. Blue की pronunciation same है, लेकिन इसकी spelling difference है, इसलिए आपको 2 different words के 2 sentences बनाने हैं. Third, rewrite in the past perfect continuous tense.
देखो डायरेक्टली टेंस चेंज करना है। द मर्लिन हैड बीन फाइटिंग फॉर इट्स लाइफ डेस्परेटली। ओके, चलिए अब हम लास्ट सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। डू एज डायरेक्टेड एनी वन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है, तो इस पर प्लीज़ आप ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, द बिगेस्ट चैलेंज नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज़ फियर एंड इंटॉलरेंस। इसका कंपैरेटिव वर्जन करना है क्योंकि यहाँ पे बिगेस्ट दिया है। ओके, कंपैरेटिव, fear and intolerance are bigger than any other challenges knocking at the door of humankind. Positive sentence है इसका, no other challenge knocking at the door is as big as fear and intolerance. बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। आप इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगी। लास्ट वन, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स काइंड। 2 सेंटेंस दिया है जिसमें से आपको मॉडल ऑक्सिलरी फाइंड करना है और उसका फंक्शन देखना है। पहला सेंटेंस है He would borrow 1 week, lend the next. Second है I knew I could not afford caviar. फर्स्ट में would है, would का मतलब है likelihood, और सेकेंड में could है, could का मतलब है ability। इसी तरीके से हमने सिंपल वे में पूरी एक्टिविटी शीट सॉल्व कर ली। अगर आपको कोई डाउट आता है स्टूडेंट्स, या कोई परेशानी होती है या कोई चीज़ नहीं समझिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए। ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका डाउट क्लियर करूँ। Dear students, thanks for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my YouTube channel Kids Study Fun and Food. Dear students, आप लोग मेरे वीडियोस तो बहुत देख रहे हो, लेकिन आप लोग ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ना मेरे वीडियोस को आप लाइक और शेयर कर रहे हो। प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप मेरी मेहनत को अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो यही वे है कि आप मुझे इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। बाय एवरीवन।